تیسری پہچان یہ بتائی مہمہ نام اور ان کو اللہ کی طرف سے جو رزق ملتا ہے اس کو اپنی ذات تک محدود نہیں رکھتے بلکہ اس میں انفاق یعنی اس کو دوسروں کے درمیان محتاجوں کے درمیان غربا کے درمیان مسکین و یتیم کے درمیان تقسیم کل میں نے آپ کی خدمت میں غیر کے سلسلے میں چند باتیں ایسی حالانکہ یہ غیر کا موضوع بہت ایسا موضوع ہے جس پر ایک اشیاء نہیں بلکہ اشرے دینا ہے۔ آج میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی گفتگو صلاۃ کے سلسلے میں یہ تمام عبادتیں ایک طرف اور صلاۃ یعنی نماز اس لیے کہ ہر عبادت میں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی حالت میں رخصت مل جائے چھوٹ مل جائے اگر صحت کی اجازت نہ دے رہی ہو اور تمہارے قریب تمہارے ڈاکٹر کو بتائے کہ رکھنا تمہاری صحت کے لیے مضر ہے تو ٹھیک ہے تو روزہ جب صحت حاصل کرو تو اس کی فضا کبھی کبھی لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ بھائی بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑا اپنی قضا ادا کرنا ہے اور یوں بھی روزہ نہ رکھیں تو اس کی قضا ادا کرنا، لیکن ایسا نہیں۔ اگر عذر شرعی کے بغیر آپ نے روزہ نہ رکھا یوں ہی تو اس کا کفارہ بھی ہے اور قضا بھی ہے، اور کفارہ بھی معمولی نہیں ہے۔ روزے رکھے ہیں 60 روزے رکھے ہیں صلوات ایک مہینے کے کفارہ نہیں، ایک روزے کا کفارہ کہ 60 روزے رکھے ہیں، اس میں 30 روزے تو لگاتار رکھے ہیں اور اس کے بعد چلیے چھوڑ کے رکھ سکتے ہیں، پھر جو ہے روزہ نہ رکھنے کا کفارہ یا پھر 60 مسکینوں کو یتیموں کو کھانا کھلایا جائے یا ایک غلام ادا کیا جائے۔ تو اگر ایسے ہی روزہ چھوڑ دیا بغیر عذر شرعی کے تو کفارہ بھی اور قضا، لیکن اگر عذر شرعی کی وجہ سے کسی بیماری کی وجہ سے روزہ ترک ہو گیا تو وہاں کفارہ نہیں ہے، صرف روزے کی قضا، یعنی جب آپ نے صحت حاصل کر لی تو آپ نے کسی نے اس روزے کی قضا ادا کر لیا، روزہ رکھ لیا، روزہ جو قضا ہوا نا وہ ادا ہوا، لیکن بہرحال روزے میں چھوٹ بھی مل جاتی ہے۔ اب اگر کوئی مسلسل ایسا بیمار ہے، مستقل سے کوئی ایسی بیماری ہے تو اس کے لیے روزہ نہیں، اس کی وجہ سے اس کی صحت میں نقصان ہو، روزہ رکھنا ہے۔ اگر مستقی ہیں تو حج کے لیے جائیے، اور اگر مستقی نہیں ہے، آپ کے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ آپ بچے اخراجات برداشت کر سکیں تو آپ کا حج واجب نہیں۔ اگر نصاب مکمل ہو رہا ہے تو زکوٰۃ مجھے، نصاب مکمل نہیں ہے تو زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں۔ لیکن نماز کا مسئلہ یہ ہے کہ نماز ہر حال میں پڑھو، ہر حال میں، اگر کھڑے ہو کے نہ پڑھ سکو تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہ پڑھ سکو تو لیٹ کے پڑھو، اشارے سے پڑھو، پانی میں ڈوب رہے ہو تو اس میں نیت کر لو، لیکن نماز کسی حق میں اللہ نے معاف نہیں فرمائی، اور اس میں کسی مسلم کی رخصت کسی کے لیے نہیں ہے، کوئی چھوٹ کسی کے لیے نہیں ہے کہ میں نماز نہ پڑھے، نماز کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ نمازی کے سلسلے میں پیغمبر اسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اولا ما سوا رد ما سوا، یعنی اگر یہ قبول تو ہر عمل قبول، اور اگر یہ عمل رد تو ہر عمل رد۔ تو اب سمجھ آیا کہ اگر نماز قبول تو ہر عمل قبول، اور اگر نماز رد تو ہر عمل رد۔ لیکن ایک بات آپ ہمیشہ اپنے ذہن عالی میں رکھیں کہ یہ نہیں کہا گیا ہے کہ اگر نماز پڑھی تو ہر عمل قبول اور اگر نماز نہیں پڑھی تو ہر عمل رد، بلکہ کہا گیا ہے کہ نماز قبول تو ہر عمل قبول اور نماز رد تو ہر عمل رد۔ نماز پڑھنے کا
किसी से रकम ले तो वापस नहीं करवाए और नमाज पढ़ना, ये मतलब नहीं कि आप नमाज पढ़ते तो आपके लिए हर गुनाह हो गया कि हर गलत काम करने का आपको लाइसेंस हासिल, बल्कि नमाज पढ़ने का मकसद ही है कि इनका सलाह तनहा अनिल फ़ाहिशाइ वल मुनकर वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, यानी खुदावंद सूरह अनकबूत में कह रहा है कि देखो नमाज इंसान को फहश से और मुनकर से दूर रखती है, यानी गुनाहों से दूर रखती है। तो भाई नमाज का मकसद भी यही है कि इंसान गुनाहों से दूर रहे। तो अब जब लोग पूछने के साथ पता नहीं चलता नमाज कबूल हुई या कबूल नहीं हुई, तो मैं कहता हूँ बड़ा आसान काम है मालूम करने का। अगर मुसलसल नमाज पढ़ने के बाद गुनाहों में कुछ कमी हो रही है तो समझिए तो कबूल हो रही है। सलावत पढ़ने वाले बहुत नहीं होता, लेकिन दूर दूर से लोग आते हैं हम वहीं से शिरकत करने के लिए, लिहाजा इस मामले का भी हक है और सिलसिले में आना और इस शिद्दत की गर्मी में बड़ा तो कुछ बातें बात करना जरूरी होती है। इसलिए नमाज देखिए सबसे बड़ी चीज है कबूलियत नमाज के लिए सबसे पहला मरहला जो है वो जो है कि हमारी कोशिश हो कि जो हम नमाज पढ़ना है वो सही नमाज जहाँ पढ़ रहे हैं वो सही, तो कोशिश ये होना चाहिए कि हमारी नमाज सही हो। अगर हम जानते हैं तो पुलिस बात करें, नहीं जानते हैं तो किसी पूछे सलावत पढ़ता हूँ। इसमें शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। आपके घर में दो खुदा रखी हुई होगी, आपके घर में बहुत लवाम होगी तो उसमें पढ़े भाई कि वाजिबात नमाज क्या है, अरकान नमाज क्या है, मुस्तहबात नमाज क्या है, मकरूहात नमाज क्या है, शर्तियात नमाज क्या है, मुब्तिलात नमाज क्या है, तो ये सारी बातें हमें मालूम होना चाहिए। अब देखो नमाज का एक अहम तरीन रुकन है, ठीक है। कुछ लोग ऊपर जाकर मसाइल बयान करते हैं, कुछ फज़ाइल बयान करते हैं। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ कि मसाइल से फज़ाइल बरामद होते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हवाले होता है। देखिए नमाज का अहम तरीन रुकन है जिसका नाम है सजदा। सजदा जिसमें इंसान अल्लाह से करीब से करीब होता है, वो क्या है? क्या वो है सजदा, वो तवज्जो। सजदे से है कौन सा रुक होगा? सजदा। अगर सजदा न किया जाए तो नमाज नहीं होती। बल्कि दो सजदे ये अरकान नमाज में शामिल है। जान बूझ के छोड़ दें तब भी नमाज बात है, भूले से छूट जाए तब भी नमाज बात है। तो सजदा तो आपको नहीं करना है। लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ, बुजुर्ग तो हर बात को उससे बेहतर तरीके से जानते हैं कि एक शख्स नमाज पढ़ा। अब आप अपनी नमाजों को और कीजिएगा कि कैसे नमाज पढ़ा। एक शख्स नमाज पढ़ा, इमाम जाफर सादिक नमाज पढ़ते हुए देखा। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि कैसे नमाज पढ़ रहा था, लेकिन अभी मेरे साथ आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कैसे नमाज पढ़ रहा था। जब वो नमाज पढ़ चुका तो छठे इमाम ने उसे फरीक बुलाया और उसके बाद उससे कहा कि तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी इस नमाज की क्या हैसियत है? तुम्हारी इस नमाज की तो तुमने अभी नमाज पढ़ी है, इमाम ने देखा ना उसे नमाज पढ़ते हुए, तो तुम्हारी इस नमाज की क्या हैसियत है? तो उसने सरकार आप फरमाए, इमाम ने फरमाया कि तुम्हारी इस नमाज की इससे ज्यादा कोई हैसियत नहीं है जैसे एक कब्बा जमीन पर ठोंगे मारा। बताने की जरूरत नहीं है कि किस तरह की नमाज है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर नमाज आप पढ़ रहे हैं तो फिर रुकू और सुजूद उसको बाकायदा अंजाम दें, वरना मुसल्ली के कहने से नहीं बल्कि इमाम पढ़वाने के तुम्हारी नमाज की खुलिया है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। मसलन तकबीरतुल इहराम जो है
की तरह से हो। आप समझ रहे मेरी बात? रसोई की तरह से हो। मक्खी ना हुआ सलावत मोहम्मद अरकान है नमाज में, यानी अल्लाहु अकबर कहने के बाद रुकू में जाने से पहले क़याम 2 सेकंड छोड़ो, फिर क़याम फिर को सीधे खड़ा होना है। इसको कहते हैं क़याम मुत्तसिल व रुकू, यानी मुत्तसिल का मतलब होता है भिड़ा हुआ, यानी रुकू से भिड़ा हुआ क़याम। अब क़याम कैसे होता है? क़याम मुत्तसिल व रुकू, जिसमें आप बिल्कुल सीधे खड़े हो, कोई भी कलमा आपकी ज़बान में आप सीधे खड़े हो, अब 2 सेकंड 4 सेकंड के लिए क़याम मुत्तसिल व रुकू, इसका अरकान है नमाज। ऐसे ही रुकू, अब रुकू हो तो रुकू की तरह से हो, ऐसे ही करना सजदा। लेकिन बहुत जरूरी थी बात आगे खत्म करना, खुदा के लिए तवज्जो फरमाए, ज्यादा लिबरल होने के लिए बेदबी बातें करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कहा मत्था टेकने को सजदा नहीं है। इसी पर ऐलान हम अपने बच्चों को बता रहे हैं भाई मत्था टेक, क्योंकि हम इस बात में रहते हैं तो मत्था टेकना हो है, सजदा करना हो। किसी जगह पर पेशानी रहते हैं कि सजदा नहीं करना, सजदा नहीं होना, बल्कि सजदा उस वक्त होता है जब तमाम अज्जाए सजदा जमीन से इत्तिसाल में हो। मैंने सभी बच्चों के लिए लगाई, लेकिन बुजुर्ग भी सजदा हो सकते हैं अगर चाहें। तो सजदा उस वक्त सजदा होता है जब सातों सात अज़ाए सजदा जो है वो कितने हैं? 7। सबसे पहले किस क्या सबसे पहले क्या पेशानी, इसका जमीन को होना जरूरी। हमारे यहाँ जरूरी है कि पेशानी जो है वो या तो मिट्टी पर हो, ये मिट्टी से बराबर होने वाली किसी जगह। जो लोग कहते हैं शिया मिट्टी की टिकिया सामने रख लेते हैं, सही जगह का मजाक उड़ाते हैं। अरे भाई हमारे यहाँ हर चीज के ऊपर सजदा नहीं होता, ये तो मिट्टी पर सजदा होगा या मसलन लकड़ी के ऊपर सजदा होगा। तो सजदा होगा लकड़ी के ऊपर, इसलिए गर्म मिट्टी से बराबर होता है, बराबर होता है। उससे लकड़ी लकड़ी को सजदा, पत्ते को सजदा, लेकिन पत्ते पर सजदा करने में ये एहतियात जरूरी है कि वो पत्ता ग़िज़ा में इस्तेमाल न हो। ये चीजें निहायत जरूरी है और मुझे सिखाई हो रही है कि वो पत्ता जो है वो ग़िज़ा में इस्तेमाल न होता, यानी उस पेड़ का फल चाहे ग़िज़ा में इस्तेमाल होता, लेकिन वो पत्ता मैंने इस्तेमाल करी उसकी एहतियात के बाद बोल रहे ग़िज़ा के तौर में न खाया जाता। मसलन अमरूद का पत्ता, मसलन आम का पत्ता ग़िज़ा के तौर में नहीं खाया जाता, लेकिन पालक के ऊपर आप सजदा नहीं कर सकते। धनिया के ऊपर आप सजदा नहीं कर सकते, पुदीने के ऊपर आप सजदा नहीं कर सकते, पान के ऊपर आप सजदा नहीं कर सकते। तो ऐसी चीज पर सजदा किया जाएगा तो ग़िज़ा में रखाई जाती है, दवा में खाई जाती है तो कोई मसला नहीं। दवा में इस्तेमाल हुआ है तो वो माने नहीं है उसको सजदा करने। कुल मिला के मैं बात करूं कि हम जब मिट्टी को सजदा करते हैं या उस शय को सजदा करते हैं जो मिट्टी से बनी हुई हो, जो मिट्टी से बनी हुई हो, यानी काबिल सजदा होने के लिए हमारे
यहाँ जरूरी है कि वो शायद या तो तुराब हो या तुराबी हो। सजा किया जाएगा। एक तो मसला है। दूसरी बात यह है कि पेशानी जो है वो जमीन पर एक कितना 60 है ना, तो एक चीज हो गई पेशानी, ये तो निकाय जरूरी। दूसरी चीज क्या हो, दोनों हथेली, दोनों हथेलियां उंगलियों का जमीन होना जरूरी नहीं रख गया, लेकिन हथेलियां। इसमें इमाम का एक और भी है, जब वो ये बहस हुई कि चोर के हाथ में हाथ बैठ जाए तो और इमाम ने फरमाया था कि उंगलियां खता कर दी जाए, क्योंकि ये हथेलियां जो है ये गज़ाए सजा है। ठीक है, ये सब कुछ जो कुछ बयान हो रहा है ये एक नॉर्मल आदमी के लिए बयान हो रहा है। सलावत नॉर्मल आदमी की बात है वो की जा रही। तो हथेलियां, दो हथेलियां, एक पेशानी, दो हथेलियां, कितना हो गया 3। उसके बाद दोनों घुटने, दोनों घुटने, इनका भी जमीन पर होना जरूरी है, तभी से क्या होगा, इनका जमीन पर होना जरूरी है, तभी से क्या होगा। तो कितना हो गया 5। उसके बाद पैर के दोनों अंगूठे, पैर के दोनों अंगूठे। यहां तक मसला है कदा कि पैर के अंगूठों के नाखून भी इतने बड़े न हो जाए, अल्लाह अकबर, कि वो पैर के अंगूठे के नाखून जमीन पर पे और अंगूठे जमीन पर ना आने पाए, तभी सजदा नहीं होगा। सजदा नहीं होगा तो नमाज नहीं होगी। तो एक पेशानी, दो हथेलियां कितने हुए 3, दो घुटने कितने हुए 5, दो अंगूठे कितने हुए 7 हो गया ना। ये सातों चीजें जब जमीन से मिल जाएं तब होता है सजदा, तब होता है सजदा। हम बेवकूफ जाहिल शरीयत से नावाकिफ अफराद जिनको ताज़ीम में अहले बैत बर्दाश्त नहीं होती, या शानशी नजरी रखी हुई है, किसी नजरी के सामने पेशानी जमीन पर रखनी, वे करके सजदा कर रहे हैं। कहाँ से सजदा हो गया? उसके लिए हमारे पास दलील है, लेकिन इस पर विश्वास करो तो ये बात समझता होगा। घुटने जमीन पर है ना, पैर के अंगूठे जमीन पर है, तो सजदा कैसे होता है? तो सजदा उस वक्त। अब देखिए, मैं आपको फलाह की मंजिल लेके जाना चाहता हूँ, मौला आपको सलामत रखे। अब इन्हीं मसाइल के हवाले से बात फलाह तक हो जाए तो इससे बेहतर क्या होगा? यही मसला मजलिस है, यही मसला मिंबर है। देखिए बेटा, अब आप सजदे में, आप सजदे में आज की मजलिस में सजदे सही हो जाए बच्चों का, तो इससे बेहतर और क्या होगा? तो जब आप सजदे में जाए, जब इस सातों अज्जा जमीन से मस होने लगे, तब कहिए सुभाना रब्बियल आला व बिहम्दिह। यानी जब बिल्कुल आप फैल जाए, बिल्कुल ढले हुए हो, हिलना बिल्कुल ढले हुए हो, पेशानी जमीन पर, सजदा हथेलियां जमीन पर, घुटने जमीन पर, पैर के अंगूठे जमीन पर, तब कहिए सुभाना रब्बियल आला व बिहम्दिह। ये नहीं कि जाते जाते शुरू हो गए या जिक्र सजदा मुकम्मल नहीं हुआ, उसने उठा लिया। कम से कम एक मतलब इसी हालत में जिक्र सजदा करना, 2 बार कर ले, और बेहतर 3 बार कर ले, और बेहतर, लेकिन जिक्र सजदा जो होगा वो इसी आलम में हो।
जब ये सातों अज़ा जमीन के ऊपर हो और आपका बदन साकित हो, तब आपको जिक्र सजदा करना, तब होगा सजदा। अब आप देखिए जल्दी में तो कोई मसला नहीं, सुभान अल्लाह करिए। जो मुस्तहबात के तौर पर कलिमात पढ़े जाते हैं वो न पढ़िए, 3 बार न करिए, एक बार करिए सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही, लेकिन मुकम्मल तौर पर सजदा कीजिए। सलावत पढ़ो। अगर इंसान है, ठीक है, जो लोग नमाज पढ़ते हैं वही समझ सकते हैं। हम मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए वहाँ मसलन ताली बिछा हुआ ये सब होता है, फिर नमाज पढ़ते हैं ताली बिछा हुआ है, चादर बिछी हुई है, मुसल्ला है और मुसल्ला बिछा दिया गया, लेकिन ठीक से पहले झाड़ू नहीं दी गई, कोई कंकड़ नीचे रह गया, अब जो घोटा जमीन पर रखा कट लगा होता नहीं, पैर का अंगूठा उठ गया। तो अगर ऐसा हो जाए, अगर जिक्र सजदा करते हुए किसी वजह से हथेली उड़ जाए तो फिर सजदे पर बात नहीं पड़े। अगर घोटा उड़ जाए तो फिर सजदा रहे, पैर का अंगूठा उड़ जाए फिर उसको जमीन पर सजदे पर कोई बात नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर पेशानी उड़ जाए, पेशानी उड़ जाए तो दोबारा नहीं रख सकते, दोबारा नहीं रख सकते, इसलिए कि फिर दूसरा सजदा शुमार हो, और एक जगह पे कोई सजदा करना, इतनी सजदा नहीं करना। लिहाजा मैं समझता हूँ फुरादा नमाज में नहीं, लेकिन जमात की नमाज में इस पर खास ख्याल रखना जरूरी है। कोई दुआ पढ़ने लगे और हमने सर उठाया तो सही नहीं सवाल ख्याल रखना जरूरी है। तो खुदा मसला ही है कि हाथ उठाए तो फिर रख लो, घुटना उठाए तो फिर रख लो, पैर का अंगूठा उठाए तो फिर रख लो, लेकिन पेशानी अगर सजदे में उठाए तो फिर रखेंगे तो दूसरा सजदा हो जाएगा, नमाज बहुत फर्क पड़ जाए, नमाज हाजिर हो जाएगी। आप इस वक्त कहीं पहुंचे या नहीं पहुंचे? नहीं पहुंचे तो मैं आपको लेके चलूं, आपकी समाजों की उंगली पकड़ के चलूं, ले जाऊं आपको वहां पर। हमारा जैसा कोई नमाज नहीं पढ़ रहा है, सहाबा नमाज पढ़ रहा है, पुराना नमाज नहीं पढ़ा, जमात से नमाज पढ़ रहा है। नमाज पढ़ाने वाला भी कोई मौलवी नहीं, अल्लाह के रसूल है, अल्लाह के रसूल है, अल्लाह के रसूल सजदे में है, पुष्प हुसैन आके बैठ गए, पुष्प हुसैन आके बैठ गए, तमाम सहाबा सजदे में है, हथेलियां भी जमीन पर, घुटने भी जमीन पर, पैर के अंगूठे भी जमीन पर, पेशानी भी जमीन पर। नबी ने सजदे में तू देना शुरू किया, लोगों ने सर उठाया, हुसैन को देखा, हुसैन को देखा, फिर जमीन पर आप जानते हैं कि वो रसूल नहीं जानते, वो सहाबा नहीं जानते, लेकिन नमाज के बाद नबी ने किसी से नहीं कहा कि तुम दोबारा नमाज पढ़ो। हुसैन पुष्ट साल पे आ गए तो रसूल एक बार नहीं 70 मरतबा सजदा करते हुए ये भी समझ में आ गया कि हुसैन दरमियान होते हैं तो इबादतों में कमी नहीं होती, इजाफा होता है। एक बार नहीं 70 मरतबा रसूल ने
ذکر سجدہ کی ذکر سجدہ فرمایا فرمایا اللہ نے اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھانا جب تک کہ حسین اپنی مرضی سے اپنی مرضی سے آپ کی گوشت نہ کرتا کا شعر ہے کہ کوئی اٹھائے گا کیا سر حسین کے آگے مجھے یاد ہے جلال صاحب کا شعر ہے فرماتے ہیں کہ کوئی اٹھائے گا کیا سر کوئی اٹھائے گا کیا سر حسین کے آگے نبی کی ذات کو سجدے سے سر اٹھانا ہے اللہ کو یہ گوارا نہیں کہ رسول سجدے سے سر اٹھائیں اور حسین اس سبب سے کچھ رسول سے زمین کی طرف آئے لیکن وہی نبی کا نوازا کربلا کا میدان کون سا ایسا ظلم ہے کہ حسین کو کربلا ملا آج 7ویں محرم زمینیں لگی ہوئی ہیں اور ہمارے گھرانوں میں پیدا ہونے والے لوگ ہیں بچپن سے بلانی دیں گے ماں کی گود میں ماتم کرنے والے افراد یہاں بیٹھے ہوئے آپ یقین مانیں ایک ادا ہم نے ایسی دیکھی ہمارے مجھے سب بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی اسے شریک ہے سردار کا زمانہ تھا ہم پہلی بار کربلا گئے بہت خراب زمانہ بہت ہی خراب زمانہ مومنین پر بہت زیادہ ظلم و ستم گھروں میں مومنین کے یا بوڑھے نظر آ رہے تھے یا بہت چھوٹے بچے زیادہ تر جوان پکڑ گئے پہلی محرم سے 10 محرم تک کربلا ماتم پابندی مجلس کر نہیں سکتے تبرک تسلیم نہیں کر سکتے بڑے ظلم سے بیچارے عرابی اگر ماتم کرے تو گرفتار ہو جائیں مجلس کریں تو بوڑھے مارے جائیں تو جو گرفتار ہو کے جاتا تھا پھر پتہ نہیں چلتا تھا کہ کہاں عام طور پر وہ واپس ہی نہیں آتا ہم لوگ چھپ چھپ کے ادھر ادھر مجلس کر لیتے تھے ماتم کر لیتے تھے شدت کی گرمی ہوتی تھی خاص طور سے خیر مقام میں ادھر کوشش کام ہوتی تھی وہاں چلے جاتے تھے اور جوان کے عالم ہوتے تھے ہم سے گزارش کرتے تھے دیتے رہتے تھے اور غالباً وہاں پہ کچھ ماتم وغیرہ ہو جاتا تھا کہ ہوٹل کے پیسے کر لیتے لیکن عزیزوں 7 8 9 محرم ہر چیز کو پابندی یعنی اگر آپ بنا ہو جائے چائے پلائیں تو اس کو پابندی شربت پلائیں تو اس کو پابندی تبرک تقسیم کریں تو اس کو پابندی صرف پانی پلانے پر پابندی نہیں تو ہم گلیوں سے گزرتے تھے بیچارے طرفے گزرے لوگ مظلوم افراد بہت سے ایسے تھے کہ جن کے پاس ٹھیک سے کھانے کو نہیں تھا لیکن امام حسین کی تعلیم میں صرف ایک کام کر سکتے تھے وہ کیا تھا لوگوں کو پانی پلانا آپ یقین مانے آج بدل آئی اپنے کیوں کہ گلیوں میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں ایک
बात ताजा हो जाती थी कि यार यहाँ वो बना भरोसा है पानी पिलाना है, मुझे तो पानी को पिलाएगा। लेकिन साथ मुहर्रम और उसके बाद करबला में उसने छोटे छोटे बच्चे आदम और खाली भूले और आकाश की हवा तमाम हो गई और सलामत रखे। आज साथ में आसिफ का तस्वीरा भी होता है और आज इमाम हुसैन की तशरीह भी बयान है। हुसैन की तशरीह सुनने मजलिस तमाम हो जाए लेकिन एक बात मैं आज करूँ कि जब से खेमत दरिया के किनारे पे आए थे इमाम हुसैन के खेमों में एक कतरा पानी सातवीं तारीख से आपकी तारीख नहीं है, आपकी तारीख पानी तो पहले ही बदल गया, लेकिन खेमों में जो थोड़ा बहुत पानी था वो इस्तेमाल रहा है। और जैसे उलमा ने बयान किया है कि इस सातवीं तारीख तो वो तारीख है जिस दिन से अली असर प्यास है सातवीं तारीख से अली अकबर प्यास है, इसलिए अगर माँ के पास थोड़ा सा पानी बचा होगा तो खुद पीती होगी और अपने बच्चे को पिलाती है। सातवीं तारीख से सकीना प्यास है, मोहम्मद प्यास है, आसिफ प्यास है, मोहम्मद भरवा खुदाने के फिर प्यास है, मोहम्मद को सोम बजाने के फिर प्यास है। और फिर मैं अर्ज करूं कि आपका पास करो पानी के सवाल न करते और हुसैन ये ना कहते कि बेटा अपनी जबान मुझे तहमत दे दो और ये अकबर तहमत जबान देकर बाहर निकाल के कहते बाबा आपकी जबान में तो काफे पड़े हुए हैं तो मालूम ही ना होता कि हुसैन की दिल कैसे। बस मुझे जबान हो गई समझो अलामा बिल्कुल करावी साहब बोला आपकी किताब बिल्कुल अब्बास में तहरीर करते हैं बच्चे छोटे से रवाज लगा तो वही से तमाम कर दो। वो कहते हैं छोटे छोटे बच्चे बीवी सकीना को भेजे हुए बीवी हम प्यास है भी प्यास मारे जाती है। बीवी सकीना ने कहा बच्चों अब बच्चे साथ साथ बीवी सकीना आगे आगे बच्चे पीछे पीछे पानी की तलाश में एक खेमे में गए वहां पानी न मिला, दूसरे खेमे में गए वहां पानी न मिला, तीसरे खेमे में गए वहां पानी न मिला। एक खेमे में सकीना जा रही है और हुसैन की बेटी है अच्छी तरह जानती है यही पानी नहीं है, लेकिन बच्चों को लेकर इसलिए एक खेमे में जा रही है ताकि दुनिया को मालूम हो जाए कि हुसैन के किसी बच्चों मैं तुम्हें उस खेमे में ले चलूं जहां मेरा भैया अली